Welcome students. Welcome to the TY Become Semester 5 Direct Tax Lecture. Today's topic is Scope of Total Income. Now in the previous sessions हमने डिस्कस किया था कोई भी एक व्यक्ति any individual can become resident in India or he may become non-resident in India. We have already discussed the sections, that is the rules mentioned under the section 6 subsection 1, how a person will become resident in India. हमने इससे पहले वाले जो सेशंस के वीडियोस है वो अपलोड किए हुए हैं. अगर आपने उसको नहीं देखा है so it's a request कि आप उसको देख लो ताकि आपको पता चले what is resident and non-resident, how the person will become, how an individual will become resident in India in any previous year, or how he will become non-resident in India. So if a person is resident in India, he is further classified into two categories. One is either he will be ordinary resident in India or he will be not ordinary resident in India. For this, the rules under section 6 subsection 6 clause A are applicable. So this already we have discussed in the earlier sessions. So an individual can be resident and ordinary resident in India. An individual can be resident but not ordinary resident in India, or he can be non-resident in India. So we have got the three different status as far as residential status is concerned. This is something which is different than citizenship. ये जो residential status है, that is calculated for income tax purpose. Now we'll see how the income is chargeable according to the different residential status. यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा residential status and taxability of income. ये तीन residential status है. एक इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है. नाउ हाउ द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द डिफरेंट हेड्स. तो देखते हैं पहला वाला है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुआ है सो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द स्टेटस. दैट मींस व्हाट, वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. So it is fully taxable in India. Income which accrues or arises in India. Income जो इंडिया में जनरेट हो रहा है, that is also taxable for all the three status. Income deemed to be received in India. Deemed मतलब assume, मतलब actual में received नहीं हुआ है, that is assumed to be received in India. Again it is taxable for all the three status. And income deemed to accrue in India, that is income assumed to accrue in India. Assume करे कि वो इंडिया से जनरेट हो रहा है. Again it is taxable for all the three status. Now these first four heads are called as what? Indian income. First four heads are called as what? Indian income. So in that case Indian income is taxable in all the cases. यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में in India, in India, in India, in India. So all the four heads are Indian income. So Indian incomes are taxable for all the four heads. Last two, fifth and sixth, are foreign income. Fifth वाला देखते क्या है? Income which accrues and arises outside India. Income जो इंडिया के बाहर जनरेट हो रहा है. From a business, control from India. लेकिन जिस बिजनेस से ये जनरेट हो रहा है वो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है और इनकम बाहर जनरेट हो रहा है. So in that case, for resident and ordinary resident it is fully taxable. Resident but not ordinary resident is fully taxable. So it is not taxable only for non-resident. So this foreign income is not taxable only for non-resident. For resident this income is fully taxable. Any other income which accrues or arises outside India, all foreign incomes which are accrues, arises, received outside India, तो ये सारे जो इनकम है जो बाहर ही जनरेट हो रहे हैं, बाहर ही रिसीव हो रहे हैं, दे आर टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. फॉर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इट इज नॉट टैक्सेबल. फॉर नॉन रेसिडेंट इट इज नॉट टैक्सेबल. इतने कुछ पॉइंट्स इसमें से. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस. आप देख सकते हो स्लाइड में
first 4 incomes are Indian incomes. So this is taxable. These are taxable for all the 3 status. मतलब इंडिविजुअल का स्टेटस इंडिया में चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, इनके लिए ये इंडियन इनकम जो है फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब इनकम पर इंडिया में टैक्स भरना होगा. फॉरेन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. फॉरेन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. अगर आप देखते हो ये 5th and 6th ये फॉरेन इनकम है. इनकम विच अक्रूज एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया, इनकम विच अक्रूज एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया. तो ये दोनों फॉरेन इनकम है 5th and 6th. इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट. तो नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है. नॉन रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है. Foreign income of not ordinary resident is taxable only if derived from business controlling or profession setup in India. Foreign income of a not ordinary resident is taxable only if it is derived from business controlling or profession setup in India. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरेन इनकम है, इसमें से ये वाला टैक्सेबल है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो ये कौन सा इनकम टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. तो इनकम कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया, बट द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो है बाहर चल रहा है, बिजनेस बाहर हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, जैसे अगर सोल ट्रेडिंग है तो उसका प्रोप्राइटर इंडिया में है, या फिर पार्टनरशिप में तो उनके मैनेजिंग पार्टनर्स जो डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स जो है वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं. अगर कंपनी तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग जो है वो कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है. मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है लेकिन बिजनेस इंडिया के बाहर. तो इनकम बाहर जनरेट हो रहा है लेकिन जो कंट्रोल है बिजनेस का वो कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है. इन दैट केस दिस फॉरेन इनकम इज आल्सो टैक्सेबल फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आते नेक्स्ट वाले कुछ 4 इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बहुत केयरफुली याद रखने होंगे. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. इसमें आपको 2 चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है. एक तो एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए. हमारे इंडिया का नारा था जय जवान जय किसान. ये जय किसान वाला जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है. सो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर कहाँ पर होना चाहिए? इन इंडिया होना चाहिए. तो ये वो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा. सो इट इज नॉट टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस. इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. उस पर टैक्स नहीं भरना है इंडिया में. बहुत बार क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है? एग्रीकल्चर इन नेपाल, एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, राइट. तो ये एग्रीकल्चर वर्ड लिखा होता है लेकिन इंडिया वर्ड नहीं होता, वो आउटसाइड इंडिया होता है. सो इन दैट केस इट इज टैक्सेबल. तो कौन से 2 कंडीशन पूरे होने चाहिए? एग्रीकल्चर वर्ड होना चाहिए और इन इंडिया होना चाहिए. देन इट इज exempt under section 10 subsection 1. Next is dividend received by an individual from Indian company, that is domestic companies, is exempt under section 10 subsection 34 up to rupees 10 lakhs. मतलब 10 लाख के ऊपर अगर इनकम मिल रहा है तो in that case it is taxable at a special rate. अभी यहाँ पर आपको भी क्या याद रखना है? देखो, एक तो वो डिविडेंड होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डिविडेंड. अच्छा, डिविडेंड किससे मिलना चाहिए? इंडियन कंपनी से मिलना चाहिए, डोमेस्टिक कंपनीज. तो इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो इन दैट केस इट इज एग्जम्प्ट, नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. और कहां तक नॉट टैक्सेबल है? 10 lakhs. अबव द 10 lakhs इट इज टैक्सेबल. अभी एग्जाम में कैसे देते हैं? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ऐसा अगर लिखा होगा इन दैट केस इट इज टैक्सेबल. सिर्फ कौन सा एग्जाम्प्ट है? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज, तो वही एग्जाम्प्ट है. अगर क्वेश्चन में लिखा होगा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो इट इज टैक्सेबल. डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज टैक्सेबल. या फिर ऐसा लिखा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी या फिर इंडियन कंपनीज. अब यहाँ पर इंडियन कंपनी है लेकिन डिविडेंड नहीं है, इंटरेस्ट है. सो इन दैट केस इट इज टैक्सेबल. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. तो अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसके कुछ हमको इनकम मिल रहा है, so that is exempt under section 10 subsection 35. so ये भी टैक्सेबल नहीं है. and important point, after the first occasion of receipt
if money is sent to another place, it is mere remittance of money and not a receipt of income. लिखा है after the first occasion of receipt, एक बार पैसा मिल गया, if money is sent to another place, उसके बाद अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भेज रहे हैं, it is mere remittance, ये सिर्फ remittance है, ट्रांसफर है of money and not receipt of income. तो दूसरी जगह पर वो इनकम नहीं होगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूएसए में काम कर रहा है और उसको वहां पर कुछ इनकम रिसीव्ड हुआ, सपोजिंग इनकम रिसीव्ड ओवर देयर इज $1000. Now out of that he is remitting $500 income to India. He is remitting $500 to India. तो ये $500 remitted to India cannot be considered as a income in India, क्योंकि एक बार वो यूएसए में रिसीव हुआ था पहली बार, तो वो वही इनकम है. फिर दूसरी जगह जो हो रहा है वो सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज ओनली अ रेमिटेंस. तो उसको हम लोग इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर वो इनकम नहीं है तो दैट केस इट इज नॉट टैक्सेबल. सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस, एक तो इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल है सबके लिए, व्हाटएवर बी द स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल है, रेसिडेंट बट नॉट ऑलरेडी रेसिडेंट के लिए ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल तभी होगा जब वो मिलेगा किसी बिजनेस से जो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. एंड फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंटायर इनकम, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, एंटायर इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल. एंटायर इनकम इज फुल. बढ़ते हैं कुछ कंसेप्ट्स की तरफ. इनकम इज सेड टू बी रिसीव्ड when it reaches the assessee. On the other hand, when the right to receive the income becomes vested in the assessee, income is said to accrue or arise. क्या लिखा है? Income is said to be received. Income received हुआ है, ऐसा आप लोग कब बोल सकेंगे? When it reaches to the assessee, जो हमको एक्चुअल में मिल जाएगा. On the other hand, when the right to receive the income becomes vested, जो इनकम है वो मिलने का हक प्राप्त होगा, the income is said to accrue or arise. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पर, सैलरी अक्रूज एवरीडे. अगर हम लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं, हम लोग रोज काम पर जा रहे हैं, तो वहां पर रोज इनकम अक्रू हो रहा है, जमा हो रहा है, बट मे बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. लेकिन जो ड्यू होगा हमारे हक में आएगा, या फिर हमको डिमांड करने का हक प्राप्त होगा, दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, जब महीना पूरा हो जाएगा. सो हम लोग रोज काम कर रहे हैं तो हमारा रोज का सैलरी जमा तो हो रहा है, बट इट इज नॉट बिकमिंग ड्यू. It becomes due on the last day of the month. तो हमारा महीना जैसे खत्म हो जाएगा, it becomes due for that month. So we are able to enforce that our right. So income is said to be received when it reaches the assessee. On the other hand, when the right to receive the income becomes vested, the income is said to accrue or arise. Thus, accrual denotes right to receive an income, while the receipt denotes actual receipt of income. Accrual का मतलब क्या होता है? Denotes the meaning राइट टू रिसीव द इनकम, हमको इनकम रिसीव करने का हक प्राप्त हो रहा है, while the receipt denotes the actual receipt, हमको एक्चुअल में इनकम मिला, that is called as what? Receipt of income. Generally income must accrue first, पहले तो जनरेट होगा, and receipt normally is after such accrual. तो नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा है, पहले तो वो इनकम जनरेट होगा, उसके बाद वो रिसीव्ड होगा. accrue refers to the right to receive the income. accrue का मतलब क्या होगा? राइट टू रिसीव द इनकम. अराइज का मतलब राइट टू एनफोर्स रिकवरी ऑफ इनकम. अक्रू का मतलब क्या होगा? हमारा हक जमा हो रहा है. एंड अराइज का मतलब राइट टू एनफोर्स, हम लोग हमारा हक वसूल कर सकते हैं. सो अराइज रेफर्स टू द राइट टू एनफोर्स रिकवरी ऑफ इनकम, हम लोग हमारा इनकम वसूल कर सकते हैं, उसके राइट्स हमारे पास जनरेट हुए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अराइज. सो दैट इज समथिंग अक्रू, अराइजल एंड रिसीट ऑफ इनकम. The following incomes shall be deemed to be received in India in the previous year, even in the absence of actual receipt. तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पर स्लाइड में लिखा था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, पहला तो लिखा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. अभी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब हम लोग इंडिया में जॉब कर रहे हैं, हमारा कंपनी इंडियन है, हम इंडियन है, तो हमारा पगार भी जो है वो इंडिया में मिल रहा है, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. हमने इंडियन बैंक में पैसा रखा है, एफडी में पैसा रखा, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी मतलब अज्यूम टू बी.
नाउ द फॉलोइंग इनकम्स शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब अज्यूम टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड नहीं हुआ है, अज्यूम करेंगे कि रिसीव्ड हुआ है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल में मिला ही नहीं है एम्प्लॉय को अभी, लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल होगा। ये क्या है? contribution made by the employer to the recognized provident fund in excess of 12% of salary of the employee। ये जो प्रोविजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोग सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी सेशन में डिटेल में देखने वाले, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझो कोई एक एक्स व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसकी महीने की पगार 10,000 है। एक व्यक्ति एक्स जिसकी महीने की पगार 10,000 है, तो उसके सैलरी में से 1,500 रुपया कट रहा है प्रोविडेंट फंड के लिए, मतलब उसके सैलरी में से 1,500 रुपया कट रहा है और वो उसके प्रोविडेंट फंड में जमा होगा। अभी ये प्रोविडेंट फंड का पैसा उसको कब मिलेगा? जब वो 20-25 साल के बाद रिटायर होगा, तो ऑन रिटायरमेंट ये पैसा उसको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। ना एज पर दैट एक्ट, जो कंपनी है एम्प्लॉयर कंपनी, उसको भी वो कंट्रीब्यूशन मैच करना होगा, और कंपनी भी समझो वहां पर 1,500 रुपया अपने जेब से डाल रही है उसके प्रोविडेंट फंड में। अभी 10,000 की सैलरी का 12% मतलब 1,200 होता है, लेकिन कंपनी कंट्रीब्यूट कितना कर रही है? 1,500, 15% हुआ। तो जो ऊपर का 3% है एक्सेस ऑफ 12%, 12% से ऊपर वाला जो 300 रुपया है, दैट इज कैलकुलेटेड एज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो वो उसके एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, मतलब उस पर उसको टैक्स भरना होगा। तो ये 300 रुपया तो उसको मिला ही नहीं, वो तो पैसा कब मिलने वाला है? 20-25 साल के बाद जब वो रिटायर्ड होगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा उसको जब मिलेगा उस वक्त मिलने वाला है। लेकिन हमारा एक्ट कहता है दिस एक्सेस ऑफ 12% इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसको इस साल मिला है, जिस पर उसको इस साल क्या करना होगा? टैक्स भरना होगा। मतलब पैसा एक्चुअल में मिला ही नहीं, पैसा तो वो रिटायर होने के बाद मिलेगा, लेकिन हमारा एक्ट कहते हैं नहीं, उसको पैसा इसी साल मिला है क्योंकि इसी साल उसके अकाउंट में जमा हुआ है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉय विच इज इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर हमने पैसा रखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड का पैसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, और उस पर अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है, तो जो एक्सेस इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल एज ए इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे आप जानते हो अभी यहाँ पर ये इंटरेस्ट का पैसा भी उसको रिटायरमेंट के वक्त ही मिलेगा, मतलब इस साल मिलने वाला नहीं है। से फॉर एग्जांपल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का रेट समझो 10% है, तो 9.5% तक एग्जम्प्ट है, ऊपर का 0.5% होगा, दैट इज टैक्सेबल इन द करंट ईयर। अभी टैक्सेबल इस साल है, लेकिन इस साल तो पैसा मिला ही नहीं, पैसा मिलेगा कब? रिटायर्ड हो जाएगा तब प्रोविडेंट फंड का पैसा आएगा तब। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of employee under a notified contributory pension scheme referred to in section 80 CCD। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता नहीं है। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा सिंपल लिख कर आएगा, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ये इंडियन इनकम है विच इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस। फिर भी समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है एग्जैक्टली इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। वैसे ये इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हैज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनकम्स विद इन इट्स एम्बिट, दे आर एज फॉलोज। हमने यहाँ पर कुछ देखा था, जो इनकम इंडिया में जनरेट हो रहा है, अक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, इंडिया में जनरेट हो रहा है, वो तो टैक्सेबल ही है। बट इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो इंडिया से जनरेट हुआ है, लोग अज्यूम करेंगे कि वो इंडिया से जनरेट हुआ है, तो ये भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इनकम विच अक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, जैसे अगर हमने समझो इंडियन बैंक में जाकर इंडियन ब्रांच में पैसा रखा है, तो हमारा जो इंटरेस्ट देने वाली बैंक है वो इंडियन है, तो वो इनकम कहाँ पर जनरेट हो रहा है? इंडिया में जनरेट हो रहा है। हम लोग इंडियन कंपनी में इंडिया में काम कर रहे हैं, समझो वी आर वर्किंग इन मुंबई, किसी कंपनी में इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं मुंबई में, तो हमारा जो सैलरी जनरेट हो रहा है, अराइज हो रहा है, अक्रूज हो रहा है, वो कहाँ पर है? मुंबई में, मतलब इन इंडिया है, वो एक्चुअल में इंडिया में अराइज हो रहा है। यहाँ पर लिखा इनकम डीम टू अक्रू, दैट इज अज्यूम टू अक्रू इन इंडिया। अज्यूम करेंगे कि वो इंडिया में अक्रू हो रहा है, तो ऐसे क्या क्या केसेस है? तो पहला है any income accruing or arising to an assessee in any place outside India, income accruing or arising to assessee in a place outside India, कहाँ पर जनरेट हो रहा है? इंडिया के बाहर, whether directly or indirectly through or from any business connection in India,
बिजनेस का कनेक्शन कहाँ पर है, इंडिया में है। थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है उसका इनकम बाहर जनरेट हो रहा है तो भी वो क्या होगा, दैट इज इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कोई एसेट इंडिया में या फिर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है। थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट इन इंडिया। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये दोनों यूएसए में रहते हैं। मिस्टर ए ने अपना प्रॉपर्टी मिस्टर बी को यूएसए में बेचा, मतलब डीलिंग कहाँ पर पूरा हुआ है, यूएसए में। लेकिन मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी बेचा वो प्रॉपर्टी दिल्ली का था। प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। सो प्रॉपर्टी जो है वो दिल्ली में मतलब इंडिया में है। डीलिंग भले ही यूएसए में हो रहा है, सेटलमेंट भले ही यूएसए में हो रहा है, लेकिन वो उससे कनेक्शन रखता है जो प्रॉपर्टी इंडिया में है। ये वाला डी वाला आ गया। थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट इन इंडिया, तो यहाँ पर भले ही वो ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हुआ है, भले वो सेटलमेंट इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का हुआ है जो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंडिया में है। एंड देयरफॉर दिस इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। वैसे अगर हमने इंडिया का कोई प्रॉपर्टी भाड़े से दिया है, भाड़े से देने वाला और भाड़े से लेने वाला, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सपोजिंग बोथ आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, जैसे समझो ए एंड बी दोनों यूके में रहते हैं। ए ने अपना प्रॉपर्टी किसी को दिया है भाड़े से, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंडिया में है। प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इंडिया में। उसका सोर्स ओरिजिन जो वो इंडिया में है, therefore that income is deemed to accrue or arise in India. Second is income from salaries which is payable by government to a citizen of India for services rendered outside India. Income from salaries which is payable by government to a citizen of India for services rendered outside India. Say for example, हमारा इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है समझो यूएसए में। इंडियन एम्बेसी, जैसे यूएसए का एम्बेसी का ऑफिस हमारे इंडिया में होता है, जैसे बायलैटरल ये एग्रीमेंट होता है, बाय पार्टी एग्रीमेंट, तो हमारा इंडिया का एम्बेसी भी कहाँ पर होगा, यूएसए में होगा। तो हमारे यूएसए में जो भी इंडियंस है उनको अगर कुछ प्रॉब्लम से दिक्कत आती है तो वो हमारे इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं, देन इंडियन एम्बेसी हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट करती है एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो इंडियन एम्बेसी में, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी होगी वहां पर जो लोग काम करते होंगे वो इंडियंस होंगे, इंडियन सिटीजन होंगे। अच्छा, वो काम करते हैं यूएसए में, मतलब उनका जो स्टे है वो आउटसाइड इंडिया है, तो डेफिनेटली स्टेटस उनका जो है वो नॉन रेसिडेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि वो इंडिया में रहकर काम नहीं कर सकते, वो तो यूएसए में रहकर काम करेंगे। तो उनका स्टे जो है वो यूएसए है, दैट इज आउटसाइड इंडिया, तो रेसिडेंशियल स्टेटस वाइज दे विल बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन उनका जो पगार जा रहा है, उनका जो पेमेंट हो रहा है, सैलरी का पेमेंट हो रहा है, वो कौन दे रही है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। मतलब वो सैलरी, वो जॉब कर रहे हैं इंडिया के बाहर, उनको सैलरी मिल रही है इंडिया के बाहर, मतलब उनका इनकम जनरेट भी हो रहा है इंडिया के बाहर, उनका रिसीट भी हो रहा है इंडिया के बाहर। इवन दो द जनरेशन एंड रिसीट ऑफ इनकम इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट करने वाला जो है गवर्नमेंट, वो कौन सा गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट। एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट इज डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी ने डिविडेंड पे किया है किसी व्यक्ति को जो इंडिया के बाहर रहता है। तो यहाँ पर डिविडेंड देने वाली कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी। तो सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया एंड देयरफॉर दिस इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये सारे कंसेप्ट समझने के लिए हमको एक क्वेश्चन देखना होगा। ये क्वेश्चंस ये चाहेंगे फिर से एक बार, एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। इंडियन इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अराइजेस इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। ये इंडियन इनकम है, ये वो तीनों के लिए टैक्सेबल। नेक्स्ट वाले दो फॉरेन इनकम है, नेक्स्ट वाले दो फॉरेन इनकम है। उसमें से पहला है बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो पहले दो के लिए टैक्सेबल, तीसरे के लिए नॉट टैक्सेबल। एंड एनी अदर इनकम विच इज अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, ये सिर्फ पहले के लिए टैक्सेबल, बाकी दोनों के लिए नॉट टैक्सेबल। तो नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल हुआ, फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दुनिया भर का इनकम टैक्सेबल। तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली व्हेन it arises outside India from a business controlled from India.
तो और ये 4 things you should remember. Income from agriculture in India is exempt. Dividend received from Indian company is exempt. Income from units of mutual fund is exempt. And after the first occasion of receipt, if money is sent to another place, it is only a remittance and not an income, and therefore it is not taxable. तो अब तक हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, so that we will get exact idea how the question will be asked. Mr. Abhijit, an Indian citizen, furnishes the following particulars of income earned during the previous year relating to the assessment year 2020-21. ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं. तो लास्ट में लिखा है कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 assuming his residential status as resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident in India. क्या क्या लिखा है? मिस्टर अभिजीत एक इंडियन सिटीजन है, उसने कुछ आपका इनकम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमको उसका टोटल इनकम काउंट करना है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए. अज्यूमिंग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या हो सकता है? आर एंड ओ आर, रेसिडेंट बट नॉट ऑन रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट. आपको पता होना चाहिए एक ही व्यक्ति का एक साथ ये एक ही साल में तीनों स्टेटस पॉसिबल नहीं है. हमको ये अज्यूम करके कैलकुलेट करना है कि इसका स्टेटस ओ आर होगा तो क्या होगा, एन ओ आर होगा तो क्या होगा, और नॉन रेसिडेंट होगा तो क्या होगा. आपको पता है कि एक ही साल में एक व्यक्ति का अलग अलग स्टेटस नहीं हो सकता. ही कैन बी आइदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, बट कैन नॉट बी 3 at once. So Mr. Abhijit is the name of assessee. Assessment year है 2020-21, previous year होगा 1920, and is an individual. तो हमारे आंसर के लिए पहला लाइन, नेम ऑफ द assessee मिस्टर अभिजीत, एज पर लीगल स्टेटस इज एन इंडिविजुअल. हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड प्रीवियस ईयर 1920. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. अगर आप इस लाइन में देखोगे तो इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. सो प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. नेचर ऑफ इनकम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब ये इंडियन इनकम होगा. सो इट इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस. मतलब it is taxable even if it is ordinary resident, even if it is not ordinary resident, and even if he is non-resident. So it is an Indian income taxable in all the 3 cases. Income earned in India but received in Rome, rupees 12,000. Income received हुआ है outside India, Rome में, लेकिन earn generate कहाँ पर हुआ है? India से हुआ है. So income earned in India but received in Rome. Income arises in India. ये इंडियन इनकम हुआ, and if it is Indian income, it is taxable in all the 3 cases. So it is taxable for ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident. Next is given dividend on shares of Indian companies. Dividend on shares of Indian companies received in India 6,000, received abroad 7,000. अब ये received कहीं पर भी होने दो, डिविडेंड किसका है? इंडियन कंपनीज का है. डिविडेंड मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? इंडियन कंपनी से मिल रहा है. डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है, दैट मींस इट इज exempt even though it is received in India or received abroad. So dividend on shares of Indian companies, it is totally exempt under section 10 subsection 34. आपको पता है it is exempt up to 10 lakhs. यहाँ पर सिर्फ 6,000 और 7,000 ही है. So received in India, received abroad, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? exempt होंगे. So that is not taxable in all the 3 cases. वो तीनों के लिए taxable नहीं होंगे. Next is salary earned and received in Paris. जनरेट भी बाहर हुआ है, रिसीव्ड भी बाहर हुआ है पेरिस में, इन फ्रांस. तो यहाँ पर ये 14,000 जो इनकम, ये फॉरेन इनकम है. ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम. सो सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन पेरिस, दैट इज फॉरेन इनकम. तो फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट. बाकी दोनों के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए, इट इज नॉट टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल 15,000. एग्रीकल्चर है लेकिन इंडिया नहीं है. एग्रीकल्चर इन इंडिया होता तो एग्जम्प्ट होता, तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होता. बट दिस इज एग्रीकल्चर इन नेपाल, मतलब ये फॉरेन इनकम हुआ. दिस इज फॉरेन इनकम.
So income from agriculture in Nepal, there is a foreign income. So foreign income is taxable only for ordinary resident. बाकी दोनों के लिए ये क्या नहीं होगा, taxable नहीं होगा. So it is not taxable for not ordinary resident. It is not taxable for non-resident. Now income from business in UK, that is United Kingdom outside India, control from India. लेकिन business कहाँ से control हो रहा है, India से हो रहा है 16,000. तो ये भी foreign income है, लेकिन ये foreign income ऐसे बिजनेस है जो बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से. तो इट इज टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट एंड नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट. सो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इट इज अ फॉरेन इनकम. तो ये सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए. मतलब रेसिडेंट चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो. और किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. Then after that we have to calculate total. So for ordinary resident, the taxable amount is 68,000. Total income is 68,000. Not ordinary resident के लिए total income is 39,000. And for non-resident, the total income is 23,000. So from this example, you will understand कि income वही है, लेकिन अगर residential status change होता है, तो taxability of income will get different. तो income यही है, समझिए transactions यही है. अगर स्टेटस है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इट इज हेवीली टैक्स. मतलब यहाँ पर 68,000 जो इनकम है वो इनकम टैक्सेबल इनकम के लिए काउंट होगा. और वही अगर नॉन रेसिडेंट स्टेटस है तो इंडियन इनकम सिर्फ टैक्सेबल है, नॉट फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है. तो इनकम काउंटेड इज ओनली 23,000. तो हमारे टैक्सेबल इनकम के इनकम में काउंट कितना होगा, सिर्फ 23,000 विल बी द टोटल इनकम. एंड फॉर नॉट नॉन रेसिडेंट इज टोटली डिफरेंट 39,000. तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो इंडियन इनकम है दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री केसेस. जो फॉरेन इनकम है वो नॉन रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल ही नहीं है. जो फॉरेन इनकम है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तभी टैक्सेबल है व्हेन द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. एंड फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंटायर वर्ल्ड इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल इन हिज हैंड्स. ये था हमारा theory discussion along with one question. We'll solve more questions in our coming sessions. Thank you very much. Hope you have understood the concept and the topic very well. हमारे आने वाले सेशंस में इसके सीरीज में जो हम लोग और वीडियोस पोस्ट करेंगे उसमें इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशन समझने के लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना होगा, कंसेप्ट्स को समझना होगा. थैंक यू वेरी मच.